Okay, so today we are going to discuss about the flow chart, that is basic seventh tool. So a flow chart is a type of diagram that represents a workflow or process. So a flow chart can also be defined as the diagrammatic representation of an algorithm, a step-by-step approach to solving a task. You have used earlier in C language programming or any other computer language. You have seen that flow chart of that program. Means if you want to write a program, then you need to create a flow chart over there. Okay, so the flow chart shows the steps as boxes of various kinds. So you are using here some boxes like oval or rectangle or diamond or that square. Okay, so you are using here some boxes of various kinds, and they are ordered by connecting the boxes with arrows, and to showcase that flow, you need to depict is through the arrows. Okay, this diagrammatic representation illustrates a solution model to a given problem. So basically, why you are designing this flow chart, just to show that the diagrammatic representation of the solution model, what you are going to present there. Okay, so flowcharts are used in analyzing, designing, documenting, or managing a process or program in various fields. Okay, so flowchart are used for to analyze. If you want to analyze something, or if you want to design something, or documentation process, or for managing a process, means you need to identify the sub activities and then further events to manage or optimize. So for that purpose you may use that flow chart. Okay, so managing a process or program in various fields comes under this category. So what is this flow chart? A diagram that uses graphical symbols to depict the nature and flow of the steps in the process. Okay, like there are various symbols you can use here. First is start and end. So you will just a moment. You will denote it as this oval. Okay. Next is this process step. So you may take it as a rectangle. Decision. So you will show it as this diamond shape. Connector, that is a circle. Measurement, that will be denoted by triangle. Okay, so these are some of the symbols. You may take another symbol also, and you need to means like in map, you are showing now, like this line will depict this, dot will depict this. So like that, if you want to design your flow chart, so you may also decide upon the symbols that you are going to use. Okay, so here it is showing the part of an example of flow chart showing how to route the incoming phone calls. So basic problem is you are designing that how you manage that incoming phone calls regarding query. Okay, to handle the customer query or client query. So first process is to start. So you have showed it in oval shape. That is start means here it is shown now. Start or end you will show it through oval. So this is start phase, and after that you will answer that phone. Means this is the process step. Answer the phone, and after that decision. Decision is what? Yes or no. So that will be denoted by that diamond shape. So you will ask about how can we help. Okay, and if customer tells you that he or she want to query about the product info, then you will help him or her regarding that product info, or help placing order. Like you will ask about that take the name and company and transfer to your sales department by the extension 2203, and then you will finish that call. Okay, and another problem is that if he or she will query about that any other aspect, then you will transfer to that department also. And otherwise you will ask about that what is your problem. And if he or she will tell you that I want to ship the order, or I want to place a bill, so then you will transfer that call to the concerned department, means shipping department or billing department. Okay,
And what is the problem? So problem with the product, if he or she will ask about what is the problem, if problem is regarding the product, then you will take the name and the company and transfer to the help desk, that is extension 2217. So basically you are routing these calls, and you have prepared a flow chart for that. So that is the flow chart. Is it clear? Is there any doubt? सर फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है? Flow chart or एल्गोरिथम से एल्गोरिथम भी फ्लो चार्ट जैसे ही होता है? हाँ, वो भी आपका एल्गोरिदम में बेसिकली आपका कोडिंग वगैरह आ जाता है। ठीक है, आप उसमें न्यूमेरिक कोड पहले तो होता था ना, जो आपका मशीन लैंग्वेज हुआ करती थी। ठीक है, मशीन लैंग्वेज के बाद बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी आजकल आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जो आप एल्गोरिदम लिखते हैं उसमें तो वो प्रॉपर वो कमेंट वगैरह वो सब लिखते हैं ना, जैसे सी लैंग्वेज में मैंने बताया कि फ्लो चार्ट भी प्रिपेयर करते हैं और दूसरी तरफ उसका कोड भी लिखते हैं। ठीक है, तो कोड क्या है, वो एल्गोरिदम है, और फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट जस्ट ये देखने के लिए कि कहीं पर हम ऐसा तो नहीं जहां पर हम रिडंडेंट हो रहे हो। ठीक है, या जहां पर डुप्लीकेसी आ रही हो। तो ये बेसिकली क्या है कि जो फ्लो है या जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं, इस चीज को हम देखने के लिए हम फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, और एल्गोरिदम बेसिकली क्या है, वो कोडिंग वाला पार्ट जो सारा है। ठीक है, सी लैंग्वेज में आप देखते हैं ना कि सी लैंग्वेज का एक सिंटेक्स होता है, उस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग आप जो है वो पूरा मैनेज करते हैं। जैसे किसी की चीज के लिए आपको प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, कुछ सर्टेन कैलकुलेशन करने के लिए, मीन निकालने के लिए, या कुछ और सर्टेन कैलकुलेशन करने के लिए आपको प्रोग्राम लिखना है, तो आप उसकी एल्गो लिखेंगे और उसके साथ साथ में फ्लो चार्ट इवन वो खुद ही बना करके दे देता है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट से क्या होता है कि वो जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसकी सीक्वेंसिंग देखने के लिए आप जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो शेड्यूलिंग करने के लिए, सीक्वेंसिंग करने के लिए, उसमें ऑप्टिमाइज करने के लिए, डुप्लीकेसी हटाने के लिए आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस में, डेटा में, डेटाबेस में। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, so here it is written that Sterneckert 2003 इन्होंने जो है सजेस्ट किया that the flow chart can be modeled from the perspective of the different user groups such as managers, system analysts and clerks, and that there are the four general types. So he has defined the types of flow chart. So these are, first is document flow chart, means showing the control over a document flow through the system. Okay, another is data flow chart, so showing the control over our data flow in a system. And next is the system flow chart, so it shows the controls at the physical or resource level. And last is the program flow chart, so showing the control in a program within a system. जनरली आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा, एक जैसे आप देखते हैं ना कि होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की क्या है ना। तो उसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर जो सीईओ होगा, उसके बाद फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके बाद सीईओ, और उसके बाद फिर आप देखिए तो डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल जो आप दिखाते हैं वो क्या है, बेसिकली फ्लो चार्ट है। कि मीन्स अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी आपको पास करना है, ठीक है, अगर दूसरे डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन पास करनी है तो आपको किसको रिपोर्ट करना है, तो वो आप फ्लो चार्ट देख करके समझ जाते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है या डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, हमें किसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो जनरली आप देखिए तो वेबसाइट्स में आपको फ्लो चार्ट भी मिल जाते हैं रिगार्डिंग दैट हायरार्की, है ना, ऑफ द की पर्सन्स दैट रिप्रेजेंटिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसका आप क्या करते हैं कि उससे आपको इजीली पता चल जाता है कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, अगर मैं एज एक्सटर्नल एंटिटी हूँ और मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी से बात करनी है, किसी नए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, होता है ना कि मैं जैसे मेरे पास एक नया ईआरपी मॉड्यूल है और मैं वो इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो मुझे किससे बात करनी चाहिए? तो मैं या तो रिसेप्शन में जाकर के पूछूंगा, वो मुझे बताएंगे, या मैं फ्लो चार्ट देख करके समझ जाऊंगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंट्रलाइज नेचर का है, तो इसमें जो सारा पावर है वो किसके हाथ में है, सीईओ के हाथ में या डायरेक्टर के हाथ में। ठीक है, तो मुझे सिर्फ डायरेक्टर से जाकर के बात करनी है। अदरवाइज अगर डिसेंट्रलाइज नेचर है तो मैं सीधा आईटी डिपार्टमेंट देखूंगा, और आईटी डिपार्टमेंट के जो हेड है उनसे बात करूंगा और उनको मैं कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। वो अगर हो जाते हैं कन्विंस तो उसके बाद वो अपने मतलब अदर टॉप मैनेजमेंट से बात कर लेंगे, और उसके बाद फिर वो फर्दर मेरा डेमो वगैरह करा करके और मेरे प्रोडक्ट में जो भी उनका इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा वो फिर बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग वहां पर भी देखते हैं तो कोई प्रोसेस है, कोई प्रोग्राम है, कोई सिस्टम है, कोई डेटा है, डॉक्यूमेंट है, उसके रिगार्डिंग आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली है क्या कि ये कंट्रोल करने के लिए काम में आता है। वो डॉक्यूमेंट जो है ना, बेसिकली कि कहाँ से स्टार्ट एक्टिविटी, कहाँ से स्टार्ट हुई है, प्रोसेस जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ पर टर्मिनेट हो रही है, और उसके बीच में उसका फ्लो क्या है। ठीक है, कहाँ पर रिडंडेंसी आ रही है, कहाँ पर डुप्लीकेसी आ रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर हमें ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, तो वो सब हम इजिली जो है यहाँ पर हम हैंडल कर सकते हैं। अब आप देखिए इसी प्रोसेस में हम देखें तो जनरली अब जो आजकल कंपनीज फ्लो चार्ट स्टार्ट करती हैं, या जो ये प्रोसेस मैनेज करती हैं, वो किस तरीके से करती हैं कि आप जैसे आपने कॉल किया, ठीक है, एज ए क्लाइंट, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक वीआरएस सिस्टम है ना, वो वॉइस सिस्टम लगा होता है। वॉइस सिस्टम में क्या है कि वो आपको बताता है कि प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस 3, है ना। अगर आपको हिंदी में सुनना है तो आप डायल करेंगे, इंग्लिश में सुनना है तो डायल करेंगे। ठीक है, फिर फर्दर जो आपकी क्वेरी है, अगर क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग है या डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग, बैंकिंग सिस्टम में जनरली कॉल करते हैं ना। ठीक है, अगर आपको कोई कंप्लेंट करानी है तो आपको जो रिप्रेजेंटेटिव से डायरेक्टली कॉल करवाते हैं वो सबसे लास्ट में करवाएंगे। ठीक है, तो अब वहां पर क्या है कि ये जब देखा इन्होंने, अब आप देखिए ना कि अगर कोई फिजिकली इसको उठाएगा, फोन को है ना, पिक करेगा, या कोई पर्सन है जो कि 24x7 आपने 8 8 आवर्स की शिफ्ट में लगा रखे हैं, और उसके बाद वो जो है पूछ करके और उसके बाद वो लोगों को कॉल ट्रांसफर कर रहा है, तो उसमें क्या है कि वहां पर डेविएशन आने के चांसेस हो सकता है, वो पिक ही ना करे, या कुछ भी जो भी प्रॉब्लम आती रही होंगी, या उसको उन 3 लोगों को सैलरी आपको अलग से देनी पड़ रही है, तो उसकी जगह आपने क्या किया, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लिया। तो अब उसमें क्या है, आपने उसमें रेडीमेड इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, तो जो आपको मतलब लगता है कि हाँ एस्केलेशन डेस्क वाला काम है, आपने वही ट्रांसफर किया जा करके अपने जो आपके क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको, ठीक है, या सुपरवाइजर्स को। बाकी का आपको काम जो है वो ट्रांसफर करने की जरूरत, या कॉल जो है वो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अगर क्रेडिट कार्ड रिगार्डिंग इंक्वायरी है और वो ऑटोमेटेड इंक्वायरी है जो इजिली सॉर्ट आउट हो जाती है, तो उसको आप उसी और जो भी आपका वॉइस सिस्टम है उसी के थ्रू आप जो है ठीक कर सकते हैं। और आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप देख रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी और ये सब जो आप डिवाइसेस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन सबसे और ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में ये फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, तो मीन्स हमें जो ह्यूमन एग्जीक्यूटिव की या जो सुपरवाइजर्स की ज़रूरत होती है वो भी नहीं रहेगी। इवन आप देखिए ना, जो आजकल चैट बॉट्स होते हैं, तो चैट बॉट्स में आप ये एच डी एफ सी का है और आई आर सी टी सी के हैं चैट बॉट्स होते हैं, तो उसका कुछ नाम रख देते हैं, टॉक टू इवा, और जो इसका आईआरसीटीसी का है, तो उसमें आप क्या करते हैं, जैसे ही आपने ओपन किया 24x7 किसी भी टाइम आपने ओपन किया, और ओपन करने के बाद आपने उसमें अपनी क्वेरी लिख दी। ठीक है, कि आई वांट टू नो अबाउट द, फॉर एग्जांपल अभी आजकल क्या चल रहा है, होम लोन के रेट जो है कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने लिख दिया बैलेंस ट्रांसफर ऑन होम लोन, है ना। तो वो आपको जो है पूरी जानकारी दे देंगे कि अगर आपको नया लोन लेना है तो आपको इसमें क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपको कॉल सेंटर का नंबर चाहिए तो वो सारी चीज़ें वो जो है आपको चैटबॉट्स में ऑटोमेटेड मैसेज के फॉर्म में दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये सब क्या है बेसिकली यही इन्हीं प्रोसेसेस को मैनेज करना। तो अल्टीमेटली जब आप फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो उसके बाद आपको जो प्रोसेसेस हैं उनको मैनेज करना इजी हो जाता है। इज इट क्लियर? ओके। तो जो आप मैं अभी लैंग्वेज में भी बता रहा था ना कि एल्गोरिदम अलग लिखी जाएगी, फ्लो चार्ट अलग बनता है। ठीक है, उसका फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं। तो फ्लो चार्ट किस लिए बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि उसमें मैं देखूं कहीं पर कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है, कि मैं अननेसेसरी कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो इसके लिए बेसिकली हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। ओके, और फ्लो चार्ट पहले बनाते हैं, एल्गोरिदम हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट इसलिए बनाते हैं कि हम जो रिडंडेंसी है, जो डुप्लीकेसी है, उसको हम रिमूव कर लें और उसके बाद फिर हम अपना कोड लिखें, एल्गोरिदम लिखें। क्योंकि आप देखिए जो कोडर्स को पैसे मिलते हैं वो कोड पर लाइन या उसके बेसिस पर, कोड पर पेज के बेसिस पर उनको पेमेंट होता है। ठीक है, तो अननेसेसरी बार बार कोड लिखवाना, फिर इसके बाद उसको हटवाना या रिमूव करना, वो क्या होगा, एक तरीके से उसमें ज़्यादा पैसे आपके खर्च होंगे। ठीक है, तो बेटर है कि आप क्या करें, पहले फ्लो चार्ट बनाएं और उसके बाद जो है आप इसको एल्गोरिदम, उसकी जो है जो भी सॉफ्टवेयर आप बनाना चाहते हैं उसके एल्गोरिदम लिखवाएं। ओके, इज इट क्लियर? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ दैट मीन्स, ये जो है आपके डॉक्यूमेंट फ्लो चार्ट है, डेटा फ्लो चार्ट है, सिस्टम फ्लो चार्ट है, प्रोग्राम फ्लो चार्ट है। तो दीज कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो और भी कई सारे अभी रिसर्चेज हैं जिसमें इन्होंने ये शो कर रखा है कि कौन कौन से फ्लो चार्ट और भी होते हैं।
ठीक है, तो इसको आप विकिपीडिया या अदर जो वेब रिसोर्सेज हैं उनसे आप रेफर कर सकते हैं. ओके. इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दिस 7 tool of flow chart? So this is the basic 7 last tool. Okay. हाँ जी, बताइए. Is there any doubt, any query? No, sir. Okay, ठीक है, thank you. No, sir. जी. Just